Hello everyone. Till now we have completed philosophy and education, branches of philosophy, Western school of philosophy, idealism, realism, naturalism, and next in this session today we will discuss about the pragmatism. Okay, what is pragmatism, merits and demerits, how it is different from idealism and naturalism. Those who have not seen my previous videos, they can go to the playlist and they can watch all these videos. So like, share and subscribe my channel. So next today we will start what is pragmatism. So what we will learn in this session? Let's move. What is the agenda? First we will learn that introduction about the pragmatism, who are the protagonists, meaning, its definition, forms of pragmatism, what is the principles, characteristics of pragmatic education, aims of education in pragmatism, curriculum, methods of teaching, discipline, teacher, student, school, demerits and comparison of idealism, naturalism and pragmatism. First one is introduction. What is pragmatism? Okay, pragmatism is a philosophical approach that measures the truth of an idea by experimentation and by examining its practical outcome. Pragmatists believe that truth can be modified, that human values are essential to academic inquiry, that truth is not absolute, that meaning and action are intimately connected, and that ideas are to be evaluated by whether they promote consistency and predictability. मतलब यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी क्या है ना, प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी में थोड़ा सा डिफरेंट है क्या कि यहाँ पे जो आइडियलिज्म में बोला गया था कि आइडियाज आर द ट्रूथ, ठीक है, यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्या कि जो ट्रूथ, जो आइडिया को हम ट्रूथ बोल रहे हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। वो ट्रूथ है कि नहीं जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाय एक्सपेरिमेंटेशन ओनली वी कैन नो दैट एन आइडिया इज अ ट्रू और नॉट। ओके, बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड बाय एग्जामिनिंग इट्स प्रैक्टिकल आउटकम, ठीक है। तो जो भी हम चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको पहले एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जो आउटकम आएगा उसको ही हम ट्रूथ मानेंगे, ठीक है। प्रैग्माटिस्ट यहाँ पे क्या बिलीव करता है, प्रैग्माटिस्ट बिलीव दैट ट्रूथ कैन बी मॉडिफाइड, मतलब जो हमें जिसको हम सच मान रहे हैं, ठीक है, जिसको हम सच मान रहे हैं वो हमेशा के लिए वो परमानेंट नहीं है। वो सच्चाई परमानेंट सच्चाई नहीं है। आज मतलब वो सच है तो वो कभी भी बदल सकती है, कल वो सत्य बदल भी सकती है। इट कैन बी modified, that human values are essential to academic inquiry, that truth is not absolute, that meaning and action are intimately connected, and that ideas are to be evaluated. जो भी ideas है, जो भी ideas आ रहा है उसको पहले evaluate करेंगे, उसको experiment करेंगे, उसको examine करेंगे whether it is right or not, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन करने के बाद जो आउटकम आएगा दैट विल बी द ट्रूथ, दैट्स व्हाई इट कैन बी मॉडिफाइड। ओके, इट कैन नॉट बी परमानेंट ऑलवेज। So who is the father of pragmatism here? Father of pragmatism is Charles Sanders Peirce. Okay. Next protagonist, Charles S. Peirce, William James Schiller, John Dewey, Margaret H. Mead, W. H. Kilpatrick. Okay. So next is meaning of the pragmatism. Okay. This pragmatism word has been derived from Greek word. What is that Greek word? Pragma. Pragma means what? Pragma means to do, to make, to accomplish, to act. Okay. Another one is pragmatikos. Pragmatikos means practicability or utility. प्रैक्टिस कम्स फर्स्ट एंड देन थ्योरी आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म का मीनिंग क्या है? प्रैग्मेटिज्म एक ग्रीक वर्ड है। वो कौन सा ग्रीक वर्ड? प्राग्मा। प्राग्मा का मतलब है टू डू, ठीक है, करना, बनाना, ठीक है। प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब इट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल वर्ड। यूटिलिटी, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल करना, उसका यूज करना। पहले प्रैक्टिस आता है, प्रैक्टिस करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके बाद थ्योरी बनता है,
ठीक है। दस एक्शन गेट्स प्रायोरिटी ओवर थॉट, मतलब यहाँ पे जैसे आइडियलिज्म में प्रायोरिटी किसको दिया गया था, आइडियलिज्म में प्रायोरिटी आइडियाज को दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है, प्रायोरिटी यहाँ पे द एक्शंस आर द प्रायोरिटी हियर, ठीक है। मतलब काम को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जा रहा है, पहले प्रैक्टिस, पहले एक्शन, पहले एक्सपेरिमेंट, पहले प्रैक्टिकल करने के बाद ही उसके बाद वो ट्रूथ माना जाएगा। एक्शन गेट्स प्रायोरिटी ओवर थॉट, मतलब थॉट जो हमें हमें आया, जो भी आइडिया आया उसको बिना एक्सपेरिमेंट करके सच्चाई नहीं मान सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई द एक्शन गेट्स प्रायोरिटी ओवर थॉट। एवरीथिंग इज टेस्टेड ऑन द टचस्टोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ ही सब कुछ टेस्ट किया जाता है। एवरीथिंग इज टेस्टेड ऑन द टचस्टोन ऑफ एक्सपीरियंस। It emphasizes actions rather than thought. It is also known by different philosophies such as, इसको अदर फिलोसॉफी के नाम से भी जाना जाता है, प्रैक्टिकल फिलोसॉफी, एक्सपेरिमेंटल फिलोसॉफी, यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी, डाउन टू अर्थ फिलोसॉफी, कैश वैल्यू फिलोसॉफी। ऑल दीज आर द अदर नेम्स ऑफ different names of this pragmatism philosophy. Next is definition. Okay, according to James B. Flood, pragmatism offers us a theory of meaning, a theory of truth, of knowledge and a theory of reality. मतलब क्या है कि pragmatism, यहाँ जेम्स बी फ्रेड कहते हैं कि pragmatism हम उसको कहेंगे, उस थ्योरी को कहेंगे जो कि that is the theory of truth, of knowledge and theory of reality, जो कि सत्य का रियलिटी चेक करता है, ठीक है। ट्रूथ का नॉलेज क्या है, is that truth is real or not, the experimenting the fact to find out the truth, that is only known as the pragmatism. Okay, next one is William James. William James says that ki pragmatism is a temper of mind and attitude. It is also a theory of the nature of ideals and truth, and finally it is a theory about the reality. The same thing here, the pragmatism is only the टेम्पर ऑफ माइंड, माइंड में जो आइडिया आया, जो एटीट्यूड आया, वो सत्य है कि नहीं, दैट इज द टू टेस्ट दैट आइडिया, ओके, टू नो द फाइनल ट्रूथ, टू नो द real truth, that is only the pragmatism. J.S. Ross says that pragmatism is essentially a humanistic philosophy, maintaining that the man creates his own values in the course of activity, that reality is still in the making and awaits its part of completion from the future, that to an uncertainable extent our truth are man-made products. Okay, here J.S. Ross says that pragmatism is essentially humanistic philosophy, जो कि यहाँ इसको pragmatism को humanistic philosophy कहा गया है, जहाँ पे कि इंसान खुद ही अपने वैल्यूज को क्रिएट करता है, ठीक है। खुद ही अपना जो एक्टिविटी करता है उसी से ही अपना वैल्यूज क्रिएट करता है, उसी से ही अपना सत्यता को निकालता है, क्या सच्चाई क्या है, ठीक है। वो उस तह तक जाता है, उसको प्रैक्टिकल करता है, awaits and its parts of completion from the future, that to an uncertain extent our truth are man made products. जो भी सच्चाई है, that are only the man made products, इंसान ने ही उस सत्यता को ही बनाया है, ठीक है। दैट्स है हियर इट इज गिवन इंपोर्टेंस टू द ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी, ओके, एंड ह्यूमन वैल्यूज, जो भी हम अपने लाइफ में जो भी वैल्यूज है, दैट इज क्रिएटेड बाय ओनली the truth, जो भी है, that is created by only the human being. Okay, and Will Durant says that कि pragmatism is the doctrine that truth is practical efficacy of an idea. मतलब ट्रूथ क्या है, ट्रूथ आइडिया का एक प्रैक्टिकल वर्जन है, ठीक है। जो आइडिया आया वो उसको प्रैक्टिकल करने से जो हमें रिजल्ट मिली, दैट इज द ट्रूथ ओनली, ठीक है। That's why it is the practical efficacy of an idea. Next is forms of pragmatism. What are the forms of pragmatism here? Humanistic pragmatism, experimental pragmatism, nominalistic pragmatism, biological pragmatism. What is humanistic pragmatism? Humanistic pragmatism believes in the welfare of humanity. From the name itself, you can know that what it talks about. Okay, believes in welfare of humanity. Humanistic, from humanistic pragmatism means it believes in the welfare of humanity. Concerned with the human needs, aspiration and satisfaction. Whatever fulfills our purpose, satisfy our desire, develop our life is true. Okay, emphasizes that only those things and
एक्टिविटीज व्हिच सेटिस्फाइज ह्यूमन बींग्स आर ट्रू। मतलब यहाँ पे ट्रूथ क्या है, प्रैग्मेटिज्म। तो पहले हम जाने कि प्रैग्मेटिज्म उसका स्टडी है, उस चीज का अध्ययन है जहाँ पे कि हमारे दिमाग में कुछ भी आइडिया आया तो वो आइडिया सच है कि नहीं जानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट मिला, ठीक है, तो उसको ही रिजल्ट जो मिला उस रिजल्ट के हिसाब से ट्रूथ हमको मतलब ट्रूथ का वैलिडिटी या तो ट्रूथ का रियलिटी पता चला। ट्रूथ का रियलिटी हम चेक करेंगे कैसे, बाय मीन्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में क्या कहा गया, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में ये बिलीव किया गया कि बिलीव्स इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब जो चीज से ह्यूमन बीइंग का भलाई हो सके, ठीक है। तो कंसर्न विद ह्यूमन नीड्स, ये किस चीज से वाकिफ है, मतलब किस चीज से कंसर्न है, इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन नीड्स। ठीक है, ह्यूमन नीड्स एस्पिरेशन एंड सर्टिफिकेशन, जिस चीज से कि जरूरत ह्यूमन बीइंग का जरूरत पूरी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग को सर्टिफिकेशन मिल सकती है, ठीक है। तो वही ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म कहा जाएगा। व्हाट एवर फुलफिल्स आवर पर्पज, सेटिस्फाई आवर डिजायर, डेवलप आवर लाइफ इज ट्रू। मतलब ट्रू हम यहाँ पे किसको कहेंगे, जो भी चीज, ठीक है, जो भी चीज ह्यूमन बीइंग का जरूरत को पूरी कर सकती है, ठीक है, उसका इच्छा को पूर्ति कर सकती है और अपने फ्यूचर के लिए अपना लाइफ को अच्छा बना सकती है, वही ट्रू है। ठीक है, एंड emphasizes that only those things and activities which satisfy human beings are true। ठीक है, वही सब चीज, सेम थिंग, एम्फासाइज, किस चीज को इंपोर्टेंस दिया गया है यहाँ पे, इंपोर्टेंस हैज बीन गिवन टू द थिंग्स एंड द एक्टिविटीज, वही सब चीज को, वही सब एक्टिविटीज को, वही सब काम को इंपोर्टेंस दिया गया, वैल्यूज दिया गया, जो कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ में सेटिस्फाई ला सकता है। तो अगर वो ह्यूमन बीइंग के लाइफ का जरूरत को पूरी कर सकती है, ह्यूमन बीइंग की इच्छा को पूरी कर सकती है, ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई ला सकता है, वही सत्य है। दिस इज ह्यूमनिस्टिक pragmatism। Next is experimental pragmatism। From the name itself, you are able to know that what is experimental pragmatism. It talks about the experiments. Okay, like here, only those ideas and experiments are true which can be verified and proved by experiment। मतलब वही idea, वही experiments को हम true मानेंगे जो कि एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो सकता है कि ये ट्रू है। ठीक है, एंड कैन बी वेरीफाइड एंड प्रूव्ड बाय द experiments। Next is believes that whatever can be experimental verified is true or what works is true। सेम थिंग here कि जो भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो सकता है, कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, कोई भी आइडिया हो, एक्सपेरिमेंटली अगर वो वेरीफाई हो गया कि हाँ दिस इज राइट, देन दैट इज ट्रू। ओके, एंड इट असाइंस मोर एम्फासाइज ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इग्नोर सोशल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इंपोर्टेंस किस चीज को दिया गया है, पर्सनल एक्सपीरियंस को दिया गया है, ना कि सोशल एक्सपीरियंस को। ठीक है, सोशल एक्सपीरियंस में बी फॉल्स बट द पर्सनल एक्सपीरियंस कैन नेवर बी फॉल्स, इट इज ट्रू। ठीक है, जो भी ट्रूथ आता है दैट इज फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली, ओके, नॉट फ्रॉम द सोशल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज नोमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। हियर यूनिवर्स इज ओनली ए नेम। ठीक है, जो यूनिवर्स है वो एक नेम ही है। whenever we make any experiment, the perspective results start coming to our mind। ठीक है, तो believes that these result of our it believes that these result of our experiments are always particular and concrete। there are many names for one thing। for example water in English, pani in Urdu, thaneer in Tamil, jal in Hindi, but the meaning is same। thus the philosophy emphasis on the material फॉर्म ऑफ द आइडियाज एंड नेम्स देम। तो यहाँ पे किस चीज को बिलीव किया गया है, यहाँ पे बिलीव किया गया है कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया, ठीक है, वही रिजल्ट को सत्य माना गया, उसको दैट इज ओनली द पर्टिकुलर एंड कॉन्क्रीट, दैट ओके, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज पर्टिकुलर एंड कॉन्क्रीट। ठीक है, मतलब एक चीज के लिए बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में वाटर को वाटर इज इन इंग्लिश, ओके, जिसको कि हम उर्दू में पानी बोलते हैं, तमिल में थनीर बोलते हैं, एंड जल हिंदी में जल बोलते हैं। ठीक है, बंगाली में ऑल्सो जल। ठीक है, उड़िया में पानी। तो ये क्या हुआ, मीनिंग इज सेम, मतलब वाटर हो, पानी हो, थनीर हो, जल हो, जड़ हो, पानी हो, कुछ भी हो, मीनिंग इज सेम बट द नेम्स आर द different। so here it is says that कि nominalistic pragmatism
Okay, so universe is only a name, but what is the truth here? Material. Okay, the material forms of the ideas. Thus this philosophy emphasis on the material form of the ideas. मतलब जो आइडिया का जो मेटेरियल फॉर्म है, ठीक है, एंड नेम देम, उसको नाम बस दिया गया है. तो दैट इज ओनली नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म. इट नॉमिनलिस्टिक मीन्स नेम. ओके. Next is biological pragmatism. The power or the capacity of human being is valuable and important. Here, the importance has been given to the capacity of human being. Okay, तो यहाँ पे human being का कैपेसिटी को, वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो उसको वैल्यू दिया गया है, उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है. इट एनेबल्स हिम टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट एंड चेंज हिज एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. मतलब क्यों दिया गया है ह्यूमन बीइंग के कैपेसिटी को इम्पोर्टेंस? क्योंकि वही एक इंसान, मतलब इंसान ही एक है जो कि अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए एनवायरमेंट में एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, एंड अपने एनवायरमेंट को चेंज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. खुद की जरूरत के हिसाब से अपने एनवायरमेंट को बदल सकता है. उसके पास वो कैपेसिटी है, उसके पास वो ताकत है. And it believes that कि knowledge is an instrument for enabling the human organism to make a better environment for himself. यहाँ पे knowledge को एक इंस्ट्रूमेंट माना गया है. तो ह्यूमन बीइंग, इफ ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल मीन्स हाउ ही इज कैपेबल, बाय मीन्स ऑफ नॉलेज ओनली, ठीक है. उसके पास वो नॉलेज है जिसकी वजह से वो अपने एनवायरमेंट को बदल सकता है. तो नॉलेज को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बोला गया है, ठीक है. बिलीव दैट कि नॉलेज इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से वो अपने एनवायरमेंट को और भी बेहतर बना सकता है, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंस्ट्रूमेंटलिज्म. यहाँ पे नॉलेज को इंस्ट्रूमेंट माना गया है, इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म बोला गया, ठीक है. एंड जॉन ड्यू इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस आइडियोलॉजी. बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म का चीफ एक्सपोनेंट है जॉन ड्यूई. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स. ओके, हियर revolt against the traditionalism and absolution. Truth changes, no ultimate values. Thought is subordinate to action. ठीक है. Faith in democracy, faith in flexibility, faith in present and future, faith in pluralism, faith in experimentation, faith in the manpower, faith in experience, principle of utility, reality still in the making. ठीक है. Faith in the practical philosophy, instrumentalism, interaction with the environment, social values, knowledge is byproduct of action, problems motivates truth, rejection of authoritarianism. मतलब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें प्रिंसिपल्स किस बारे में बात करता है यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म कहता है कि ट्रूथ चेंज, ट्रूथ मतलब परमानेंट नहीं है. आज अगर ये कुछ सच्चाई है तो वो सच्चाई कल बदल भी सकती है. ट्रूथ चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन beings nature and experimentation according to the human needs requirements and experimentation. Truth changes. Okay, no ultimate values. मतलब values ऐसे कि मतलब कोई भी वैल्यू जो है कि वो रियल नहीं है, वो अनसर्टन है, ठीक है. एंड थॉट इज सबऑर्डिनेट टू एक्शन. यहाँ पे एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है रादर देन टू आइडिया. जो भी आइडिया आएगा उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज ओनली द ट्रूथ. ओके, तो इसमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है. वी लिव इन द फ्लेक्सिबिलिटी. प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट के हिसाब से एंड फ्यूचर के हिसाब से समय बदलते रहता है. उस समय बदलते समय के अनुसार, ठीक है, बदलते समय के अनुसार इंसान को अपने एनवायरमेंट को भी बदलते रहना है. उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो बदल सकता है. और वो ट्रूथ क्या है कि ह्यूमन बीइंग के नीड्स के अनुसार उसको डिजायर को फुलफिल जैसे जो चीज कर पाए, ठीक है, सेटिस्फाई जो चीज कर पाए वही है ट्रूथ. तो सो यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जहाँ जिस चीज से कि इंसान को खुशी मिल सकती है, इंसान हैप्पीली रह सकता है, ठीक है. फेथ इन प्लूरालिज्म मतलब एक चीज को वो बिलीव नहीं करता है. दैट्स व्हाई इट इज सेज दैट कि फेथ इन प्लूरालिज्म. फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशन, मैन पावर, एक्सपेरिमेंटेशन को के ज्यादा बिलीव किया गया है. एक्सपेरिमेंट है, अगर एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल के आया वही सही है, बाकी सब सही नहीं है, ठीक है. एंड ह्यूमन बीइंग के पावर और कैपेबिलिटी के ऊपर ज्यादा बिलीव किया गया है. एंड एक्सपीरियंस को भी, पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पे ज्यादा फोकस दिया गया है.
ठीक है, ऑल दीज आर अबाउट द प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन. प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन कैसा होना चाहिए? एजुकेशन एज लाइफ, एजुकेशन एज ग्रोथ, एजुकेशन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन एज सोशल प्रोसेस, एजुकेशन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, एजुकेशन एज फ्रीडम, एजुकेशन एज डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एज ह्यूमैनिटेरियनिज्म, एजुकेशन एज डेमोक्रेसी, एजुकेशन एज ह्यूमन पर्सनालिटी. मतलब एजुकेशन कैसा होना चाहिए? एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग का जिस लाइफ में वो काम में आ सके, उसका ग्रोथ हो सके, पर्सनल ग्रोथ हो सके, सोशल प्रोसेस बन सके, सोशल में एक मतलब अजय ह्यूमन बीइंग अच्छे से अपना स्टेटस मेंटेन करके रह सके, सोशली वो हैप्पी में रह सके, अपना एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, उसका फ्रीडम हो कोई भी चीज को चूज करने के लिए, ठीक है, जानने के लिए, उसका नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है. एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि फिलोसफी का, एजुकेशन का फिलोसफी को डेवलप कर सके, ठीक है. एंड एजुकेशन एज ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मतलब ह्यूमन बीइंग का वो प्रेजेंट फ्यूचर को नजर में रखते हुए उसका एजुकेशन होना चाहिए, उसका जिससे डेवलपमेंट हो सके, ह्यूमन पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके. एजुकेशन एज अ डेमोक्रेसी. एजुकेशन मतलब एक ही जगह पे ना रह के उसका स्प्रेड हो सके, इट मस्ट बी डेमोक्रेटिक. ओके. एंड एजुकेशन एज ह्यूमन पर्सनैलिटी का वो डेवलपमेंट कर सके. Next is aims of the education. It gives more emphasis on the education, creation of new values. New values का creation जैसे हो सके, all round development and growth, social efficiency, personal and social adjustment leads to democracy. Next is curriculum. Curriculum must be principles of utility, principles of interest, principle of experience, principle of integration, principle of flexibility, principle of child centeredness, principle of life centeredness. मतलब करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड, जहाँ पे कि चाइल्ड खुद को एक्सप्लोर कर सके बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, वो खुद एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद प्रैक्टिकल करेगा तब जाके उसका नॉलेज एनहांस होगा, ट्रूथ को वो जानेगा. करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबल होगा तभी वो खुद को अच्छे से जान पाएगा, एक्सप्लोर कर पाएगा, नॉलेज का गेन हो सकेगा. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी इंटीग्रेटेड नॉट लिमिटेड, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, करिकुलम ऐसा बनना चाहिए ताकि बच्चे उसका एक्सपीरियंस गेन हो सके, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस कर सके. प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी उस चीज में होना चाहिए. यूटिलिटी, उसको जैसे कि यूज कर सके, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में वो उसको यूज कर सके, प्रैक्टिकल कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है, उसका यूज हो सके. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है. एंड लाइफ सेंटर्डनेस. लाइफ सेंटर्डनेस मीन्स यहाँ पे वो प्रेजेंट और फ्यूचर को करिकुलम ऐसा होना चाहिए ताकि उसका लाइफ में वो काम में आ सके, प्रेजेंट लाइफ में एंड फ्यूचर लाइफ में भी. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग. Methods of teaching are learning by doing, project method, experimental method, purposive process of learning, problem solving method, integrated approach of teaching. Next is discipline. Discipline emphasizes social discipline through participation in cooperative activities in school society. Okay, participation enables the child to imbibe virtues such as tolerance, mutual respect, sympathy, initiative, and service humanity. In the words of John Dewey, out of doing things that are to produce results and out of doing in a social and cooperative way, there is born a discipline of its own kind and type. Okay, discipline does not mean a simple obedience to rules or commands imposed from outside. Blind obedience is the negation of the democracy. Hence, all educators have to create discipline to evoke a sense of social responsibility in the child. Okay, this social discipline helps him in performing all personal and social tasks. तो यहाँ पे डिसिप्लिन में क्या क्या कहा गया है, किस तरह के डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों के अंदर? बच्चों के अंदर सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए. तो सोशल डिसिप्लिन कैसे डेवलप होगा? सोशल डिसिप्लिन तभी डेवलप हो सकता है जब बच्चे कोई भी सोसाइटी में, जैसे कि स्कूल सोसाइटी में कोऑपरेटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके उसके अंदर एक सोशल डिसिप्लिन डेवलप हो सकता है. तो सोशल डिसिप्लिन मतलब कौन कौन से वैल्यूज, मतलब सोशल कोऑपरेटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के बाद कौन कौन से वैल्यूज उसके अंदर डेवलप हो सकती है, लाइक टॉलरेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, सिंपैथी, इनिशिएटिव एंड
ह्यूमैनिटी, ये सारे गुण उसके अंदर डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो जॉन ड्यू क्या कहते हैं, जॉन ड्यू कहते हैं कि आउट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड आउट ऑफ डूइंग इन ए सोशल एंड कोऑपरेटिव वे देयर इज अ बॉर्न ए डिसिप्लिन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड टाइप। मतलब कि कोई भी चीज हम अगर करते हैं, ठीक है, कोई एक्शन होती है, काम होती है, तो एक्शन होने से एक रिजल्ट निकलती है। ठीक है, आउट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ठीक है, कोई भी काम जो होता है उससे एक रिजल्ट मिलती है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, उस काम का प्रोडक्शन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट मिलती है, प्रोडक्शन होता है रिजल्ट। लेकिन अगर हम चीज को कोऑपरेटिव तरीके से करेंगे, सोशल तरीके से करेंगे, ठीक है, मिलजुल कर करेंगे, तो उसमें क्या डेवलपमेंट होगा, उसमें डिसिप्लिन डेवलपमेंट होगा। देयर इज ए बॉर्न ए डिसिप्लिन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड टाइप, खुद का डिसिप्लिन क्रिएट होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड टाइप। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सोशल डिसिप्लिन के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया कि बच्चे एक जैसे कि सोशली रेस्पॉन्सिबल बन सके। ठीक है, जो सोशल रेस्पॉन्सिबल बनने के लिए जो जो गुण होना चाहिए उसके अंदर, जो जो क्वालिटीज होना चाहिए, तो उसके अंदर वो क्वालिटीज कैसे डेवलप होगी, अगर वो सोशली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, तब जाके उसके अंदर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। सो दिस सोशल डिसिप्लिन हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ऑल पर्सनल एंड सोशल टास्क। अगर वो सोशल डिसिप्लिन उसके अंदर डेवलप हो सकती है, तो होने के बाद क्या होगा, दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू परफॉर्म द ऑल पर्सनल एंड सोशल टास्क। अगर वो सोशली डिसिप्लिन बन सकता है, तो सोशली डिसिप्लिन बनने के बाद वो सारा सोशल का जितना भी सोसाइटी का एनी टास्क, एनी चैलेंज, पर्सनल चैलेंज हो या सोशल चैलेंज हो, उसको वो परफॉर्म कर सकता है, उसको वो टैकल कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। Next is teacher and student, how the teacher should be and the student should be. Teachers and एक्सपेरिमेंटलिस्ट, यहाँ पे टीचर किस तरह का काम करता है प्रैग्मेटिज्म में, टीचर जैसे कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, मतलब वो जो कि एक्सपेरिमेंट करवाता है, ठीक है, जो मोटिवेट करता है एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, तो उसको ही कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट। सो टीचर इज लाइक एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट, ओके, एंड टीचर इज लाइक ए फ्रेंड एंड गाइड। Teacher adopts hands off policy. Teacher should know the child and the society. Teacher is like a model. And how the student should be, the student should have the freedom to decide his own aims, goals and purpose independently. खुद का गोल, खुद का एम्स वो इंडिपेंडेंटली ले सके। ठीक है, उसके पास वो फ्रीडम होना चाहिए। गेट एजुकेशन इन सोशल एनवायरमेंट, उसका एजुकेशन कहाँ पे होना चाहिए, सोशल एनवायरमेंट में होना चाहिए। एंड हैव द अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज स्कूल, वर्ड्स ऑफ जॉन ड्यू, ओके। School as miniature society in which child gets real experience to act and behave according to his interest, aptitude and capacity. School मतलब ऐसा एक सोसाइटी है, स्कूल ऐसा एक सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे कि बच्चे खुद का रियल एक्सपीरियंस कर सके, खुद को एक्सपीरियंस कर सके, उसका कैपेबिलिटीज को जान सके। ठीक है, एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड कैपेसिटी। स्कूल ऐसा सोसाइटी होना चाहिए स्कूल जहाँ पे कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से सारे चीज में पार्टिसिपेट कर सके, हर चीज को एक्सपीरियंस कर सके, खुद को वो एक्सप्लोर कर सके, खुद को वो जान सके। स्कूल एज लिविंग लैबोरेटरी प्रोवाइडिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट इन द सोशल एनवायरमेंट। स्कूल एक जैसा कि लैबोरेटरी होना चाहिए, जहाँ पे कि लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं, लैबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो स्कूल भी इस तरह ऐसा एक लैबोरेटरी होना चाहिए जहाँ पे कि बच्चों को नॉलेज मिल सके, उसको सोशल एनवायरमेंट में नॉलेज मिल सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, नॉलेज टू द स्टूडेंट इन द सोशल एनवायरमेंट। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन where socializes the child and prepares him for social change. ठीक है, सो स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कि बच्चों को किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सोशली सोसाइटी में जो चेंजेस आएगा, चेंजेस आने वाला है। ठीक है, मतलब कल को कुछ भी चेंज हो सकता है, उसके लिए हमेशा बच्चों को प्रिपेयर होकर रहना चाहिए, कोई भी सिचुएशन में वो कैसे खुद को हैंडल कर सके। इट इज नॉट a center of education alone but also a community center of various activities and experiences. ये बस
एजुकेशन का सेंटर नहीं है कि कल बस आए पढ़ाए चल दिए, नहीं, ये एक ऐसा कम्युनिटी बनना चाहिए, स्कूल ऐसा एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जहाँ पे कि डिफरेंट तरह तरह के एक्टिविटीज होना चाहिए, जहाँ पे कि बच्चे हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, हर तरह के एक्सपीरियंस को गेन कर सके। स्कूल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक मिरर होना चाहिए स्कूल, ठीक है। School is the embryo of the community. It acts as an instrument for the preservation and promotion of the world culture. School एक कम्युनिटी का एम्ब्रियो जहाँ पे कि बच्चों को नर्चर किया जा सके, स्कूल ऐसा एक कम्युनिटी होना चाहिए। स्कूल एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट स्कूल होना चाहिए जहाँ पे कि कल्चर का, वर्ल्ड में जो भी कल्चर है हमारा उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको प्रोमोट किया जा सके। Next is demerits. What are the demerits here? It ignores the spiritual values, it ignores the eternal truth, emphasizes on material world, no fixed aim of education, negation of the past, against the formal education, difficulty in curriculum construction, heavy demands on teacher, academic freedom and mismanagement, negation of humanities. ये सारा चीज को ये इग्नोर करती है, ठीक है। स्पिरिचुअल वैल्यूज को इग्नोर करती है, ठीक है। इटरनल ट्रूथ को इग्नोर करती है, मटेरियल वर्ल्ड में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेगेशन ऑफ द पास्ट, पास्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, ओनली प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बात किया गया है। अगेंस्ट द फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन भी होना जरूरी है लाइफ में, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन के अगेंस्ट में बात किया गया है। डिफिकल्टी इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अगर यहाँ पे मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी, फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा, तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन करने में भी प्रॉब्लम्स आएगी। सो देयर इज डिफिकल्टी इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। हेवी डिमांड्स ऑन टीचर, टीचर का ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे rather than the students, okay। academic freedom and mismanagement, ज़्यादा academic freedom देने के वजह से mismanagement भी हो सकती है। negation of the humanities, these all are the demerits of the pragmatism। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तीनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। हु आर द फर्स्ट इज चिप कंपोनेंट्स। आइडियलिज्म के चिप कंपोनेंट्स कौन है? महात्मा गांधी, टैगोर, प्लेटो। नेचुरलिज्म में है टैगोर, एरिस्टोटल, रूसो, कोम्टे, ओके। प्रैग्मेटिज्म में है जॉन डीवी, किलपैट्रिक, ओके। एंड हियर गॉड और कॉन्सेप्ट में सबका मानना क्या है? आइडियलिज्म believes that there is God, faith in God, that's why it is monistic, ठीक है। इस idealism believes in God, but naturalism there is no faith in God, this is also monistic है, क्योंकि ये नेचर के ऊपर में बिलीव करती है, गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करती है। बट pragmatism faith in human power and spiritual power, not universal। faith in human power and spiritual power is not universal, so this is pluralistic, ठीक है। स्पिरिचुअल पावर या यूनिवर्सल नहीं है, यहाँ कभी भी सत्य बदल सकती है। सो यहाँ पे प्लूरालिस्टिक है, ये मोनोइस्टिक नहीं है। एजुकेशन, हियर आइडियलिज्म गिव इंपोर्टेंस इन द स्पिरिचुअलिज्म एंड एथिक्स, बट नेचुरलिज्म गिव इंपोर्टेंस इन द साइकोलॉजी एंड प्रैग्मेटिज्म गिव इंपोर्टेंस इन बोथ साइकोलॉजी एंड साइंस, ठीक है। एजुकेशन नीड, यहाँ पे एजुकेशन का नीड किस चीज के लिए है? आइडियलिज्म है स्पिरिचुअल नीड, एजुकेशन इज नीड फॉर स्पिरिचुअल नीड। बायोलॉजिकल नीड, हियर नेचुरलिज्म इज फॉर बायोलॉजिकल नीड, एंड इन प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन नीड इज सोशल नीड। नेक्स्ट इज एम। व्हाट इज द एम ऑफ द आइडियलिज्म? होली लाइफ एंड डेवलप हिज इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, ठीक है। एंड नेचुरलिज्म का एम है नेचर एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट, नेचुरल एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म है सोशल एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट। in the curriculum, here in idealism, religious and spiritual studies, ethics, language, sociology, geography, history, music and fine arts, these are included in the curriculum in idealism, okay। in naturalism, games, sports, physical science, physiology, health, culture, material science and biological science. And in pragmatism, it gives importance to the health, hygiene, science, culture, history, geography, mathematics, home science, okay, science, agriculture, etc. So this is all about pragmatism. All of you have understood properly. I have explained it in detail. So if you like the video, like it, share it and subscribe it, and don't forget to give comments. Thank you all. Meet you soon in the next video.